Hello students, today we are going to discuss problem number 11, which is a solve problem from the ledger. Pass necessary journal entries for the following transaction and show cash account only. So in this problem we have to prepare only cash account. Cash account हमें यहाँ पे prepare करना है. See the problem 2019 March 1st, cash balance rupees 10,000. March 6 bought goods rupees 2,500. 7 received from Sudhir rupees 3,000. 10 paid to Madhuri rupees 2,000. 12 cash sale rupees 7,000. 20 paid rent rupees 3,500. Now firstly we have to pass journal entry and then prepare the cash account. सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर लो एंड फिर कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो कैश बैलेंस रुपीज 10,000. सो दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट. So no need to pass journal entry for this. 6 number bought goods rupees 2,500. Bought goods means purchase goods. So purchase goods for cash ऐसा इसका मीनिंग है बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया है, किसी पर्सन का नाम नहीं है. सो बॉट गुड्स मीन्स परचेज गुड्स फॉर कैश. सो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दो अकाउंट आएंगे इसमें एंड वी नो परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड. सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस 2019 March 6 परचेज account debit to cash account and amount is 2,500 being goods purchased for cash. 7 received from Sudhir rupees 3,000. So received from Sudhir, Sudhir से received हुआ, क्या received हुआ? Cash. Okay, so cash real account है, cash comes in means cash account debit. Sudhir is a giver, so Sudhir account credit. So cash account debit to Sudhir account and amount 3,000. This is the second journal entry. Paid to Madhuri, Madhuri को payment किया. So cash goes out in this transaction. That is why cash credited and Madhuri she is the receiver. So Madhuri debit होगा. Journal entry क्या होगी? Madhuri account debit to cash account 2,000. Narration being amount paid to Madhuri. Then cash sale. Cash sale means goods sold for cash. This is the meaning of cash sale. तो यहाँ पे परचेस सेल अकाउंट है. ओके, यहाँ पे सेल अकाउंट है एंड कैश अकाउंट, ऐसे दो अकाउंट आ रहा है. सेल वी नो ऑलवेज क्रेडिटेड, सो कैश टू सेल ये जर्नल एंट्री है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, 7,000 being goods sold for cash. Then the next paid rent rupees 3,500. So rent means expenses. Rent nominal account and it is expenses. And what is the rule of nominal account? Debit expenses and losses, credit income and gain. So rent expenses है naturally debit होगा. तो rent account debit to cash. Rent account debit to cash account 3,500 being paid rent. Okay, now total of journal entry. जर्नल का टोटल करना है, 18,000 हो गया. इसके बाद प्रिपेयर करना है कैश अकाउंट. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है. दैट इज वाई सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो कैश अकाउंट ओनली. सो कैश अकाउंट. सो लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट. सेम for the credit side, date, particular, journal folio, amount. And the balance of cash they given, cash balance rupees 10,000. cash क्या है? cash is a current asset. cash current asset है and asset का debit balance होता है. इसके लिए यहाँ पे ये जो 10,000 है ये डेबिट में आएगा. डेबिट में क्यों आ रहा है? बिकॉज asset का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है. तो कैश का बैलेंस क्या होगा? डेबिट. So two balance brought down, right? 2019 March 1st, then two balance brought down 10,000. तो ये पहला सबसे पहली लेजर की पोस्टिंग हो गई. उसके बाद वन बाय वन जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करना है. तो जहां पर कैश है वो पोस्टिंग होगी. नाउ सी द फर्स्ट जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. इन दिस जर्नल एंट्री कैश जो है वो क्रेडिट है. ओके, इस जर्नल एंट्री में कैश कहां पर है? क्रेडिट में है. तो कैश के क्रेडिट में एंट्री होनी है.
ओके, वाई कैश के क्रेडिट में? बिकॉज कैश कहाँ पर है? क्रेडिट में है। तो कैश के कहाँ पे एंट्री होगी? क्रेडिट साइड में। एंट्री में कैश नहीं लिखना है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट एंड द रूल ऑफ अकाउंट इज व्हाट कि जो जिसका लेजर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका ही नाम लेजर में नहीं लिखना है हमें। तो कैश अकाउंट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश अकाउंट कहीं नहीं आएगा लेजर में। तो कैश नहीं लिख सकते तो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे? कैश को छोड़ के। तो कैश के साथ कौन सा अकाउंट है? कैश के साथ क्या है? परचेसेस है। ओके, कैश के साथ क्या है? परचेसेस है डेबिट साइड में। तो हमें क्या लिखना है? परचेसेस लिखना है। तो क्रेडिट साइड में कैश क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट साइड में होगी और लिखना क्या है? परचेस। क्रेडिट की एंट्री है, इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए क्या आएगा? बाय, सॉरी, क्रेडिट में इसके लिए क्या आएगा? बाय 2019 मार्च 6 बाय परचेसेस अकाउंट 2500 ये हो गया। देन सी द नेक्स्ट 7th कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर। नाउ यहाँ पे कैश डेबिट में है तो अभी यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे करनी है? सी, कैश कौन से साइड में दिख रहा है? कैश दिख रहा है डेबिट में, तो कैश के डेबिट में एंट्री होगी। लेकिन अकाउंट क्या लिखना है? कैश के साथ कौन सा अकाउंट दिख रहा है हमें? कैश के साथ है सुधीर। ओके, तो हमें लिखना क्या है? सुधीर अकाउंट। क्या लिखना है? सुधीर अकाउंट। तो डेबिट साइड में इसके लिए 2 आएगा एंड राइट टू सुधीर अकाउंट, राइट द डेट फर्स्ट 7 टू सुधीर अकाउंट 3000। देन गो फॉर द नेक्स्ट 10th नंबर माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ हियर अगेन कैश क्रेडिट में दिख रहा है तो कैश के कौन से साइड में एंट्री होनी है? क्रेडिट साइड में। और अकाउंट क्या लिखना है? सी, कैश के साथ कौन सा अकाउंट है? माधुरी अकाउंट है डेबिट में, कैश के अपोजिट में माधुरी अकाउंट है तो अकाउंट लिखना है माधुरी। मतलब कि कैश अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री होगी पर अकाउंट आएगा माधुरी और डेट का क्या है? 10। तो क्रेडिट है इसके लिए बाय, सो डेट आएगा 10, क्रेडिट है इसके लिए बाय, अकाउंट आएगा माधुरी अकाउंट एंड अमाउंट 2000। ओके, देन सी द नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी यहाँ पे कैश किधर दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है तो जर्नल एंट्री कहाँ होनी है? डेबिट में होनी है। और कैश के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। तो लिखना कौन सा है? सेल्स अकाउंट लिखना है। तो कैश के डेबिट में और अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट। डेट क्या है? 12, तो यहाँ पे आ गया 12। डेबिट इसके लिए 2, अपोजिट में कैश के सेल अकाउंट है इसके लिए सेल अकाउंट आएगा एंड अमाउंट 7000, तो 7000 यहाँ पे आ गया। देन 20 रेंट टू कैश। नाउ अगेन कैश कौन से साइड में दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। कैश के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? रेंट अकाउंट है। ओके, तो कैश के अपोजिट में रेंट अकाउंट है तो लिखना क्या है? रेंट अकाउंट लिखना है। क्रेडिट साइड में कैश है इसके लिए 20 डेट, क्रेडिट है इसके लिए बाय, अपोजिट में रेंट अकाउंट है इसके लिए रेंट अकाउंट, अमाउंट 3500 एज इट इज। नाउ ये सारा पोस्टिंग होने के बाद वी हैव टू क्लोज दिस कैश अकाउंट। तो यहाँ पे विच साइड इज बिगर? फर्स्ट डोंट लुक आफ्टर दिस बैलेंस, विच साइड इज बिगर? देखो ये 10,000 3,000 7,000 20,000 है और ये यहाँ पे जो मैंने येलो किया इसकी टोटल कितनी आ रही है? 3,500 प्लस 2,000 प्लस 2,500 8,000। सो 20,000 इज बिगर, तो 20,000 यहाँ पे लिख दिया। यही अमाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है और यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 12,000। 20,000 माइनस 8,000 12,000, इसे कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 क्यों लिखा? बिकॉज मार्च का एंड का डेट क्या है? 31 है। नाउ ये बैलेंस जो है वो ब्रॉड डाउन करना है। बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, ये क्रॉस करके बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, ये क्रॉस करके कहाँ पे जाएगा? डेबिट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000। तो इस तरीके से कैश अकाउंट प्रिपेयर हुआ। तो ये एक सिंगल लेजर प्रिपेयर किया है, आगे हम लोग ज्यादा लेजर देखेंगे। ओके, थैंक यू।